الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رجب، تو رجب جو الفاظ ہے وہ ترجیب سے آیا ہے۔ ترجیب کا میننگ ہوتا ہے عظمت والا، اور انگلش میں اس کو بولیں گے is to respect، ریسپیکٹ والا یا پھر عظمت والا۔ یہ لونار کیلنڈر کا یعنی کہ جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا 7واں مہینہ ہوتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اور حدیث میں اس مہینے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرک سے ہر وقت لڑتے رہو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور وہ کب سے ہے؟ جب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو جتنے بھی اگر انگلش منتھ بنے ہیں 12 یا پھر جو ہے ہندی منتھس بنے ہیں 12، اس سے پہلے بھی دنیا بنانے سے پہلے زمین اور آسمان بناتے وقت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور چن لیا تھا اس میں سے کچھ مہینوں کو جس میں کی 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ یہی سیدھا دین کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس میں نہ تو اب کوئی ایڈیشن ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی چاہے کہ 13واں مہینہ لے آئے، یا پھر کوئی چاہے کہ اس مہینے کو 11 کر دے۔ اور جب یہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، تو جتنے بھی ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو ہر ایک مہینہ کس سے بنتا ہے؟ ہفتے سے۔ ہفتہ کس سے بنتا ہے؟ دن سے، اور اسی طریقے سے دن بنتا ہے گھڑیوں سے۔ تو کوئی گھڑی، کوئی پل، کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ نہ تو منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے کسی چیز کے طریقے سے بدشگونی ہوتا ہے، الحمدللہ، کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی سیدھا دین ہے۔ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اس ظلم کو تو جانتے ہیں بے شک، کہ جو دوسرے پر کرتے ہیں، یا تو مار کاٹ، یا پھر جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یا کسی کا حق چھین لینا، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی انسان اپنے فرضوں کو چھوڑ دے تو اس کا جو ہے اس کو اس کی سزا ملے گی کب؟ آخرت میں۔ تو بیسیکلی اپنی ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے روکا اس کو اگر کیا جائے تو اپنی نفس پر ظلم کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو اس میں اگر ٹال مٹول کر دی تو اپنی جان پر جو ہے کیا ہوگا؟ نہ ظلم کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لہٰذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی اس مہینے میں ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ اور جس چیز کا حکم دیا ہے صرف انہی چیزوں کو جو ہے کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ بیسیکلی جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، حرمت والے یعنی کہ عظمت والے یعنی کہ ریسپیکٹ والے مہینے، اس کے اندر جنگ و جدال جو ہے منع آیا ہے۔ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے؟ آپ دفاع کر سکتے ہیں، اگر کوئی بولتا ہے تو آپ صرف منہ سے جو ہے اس سے بول کر جو ہے اپنا جو ہے ڈیفenس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس لیے آئی کہ اگر ہاں وہ کرتے ہیں تو آپ پھر جو ہے ان کے ساتھ جیسا وہ کرتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اگر آپ پرہیزگار رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی ہی آئے گی۔ اب رجب کے حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی 3197 ہے۔ ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا ہے اس دن
जैसे उस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा की थी। साल 12 महीनों का होता है। 4 महीने उसमें से हुर्मत के हैं। 3 तो पै दर पै आते हैं, यानी जुल्कदा, जुल्हिजा और मुहर्रम। और चौथा रजब है, जो कि माजर जो जमादुल आखिर और शाबान के बीच पड़ता है। तो अब इस हदीस से और जो है सूरह तौबा की आयत नंबर 36 से ये चीज तो वाज़ेह हो गई और क्लियर हो गई कि जो रजब है वो क्या है, हुर्मत वाला महीना है। अब हुर्मत वाला महीना क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे, और हुर्मत वाले महीने में करने वाले काम क्या है उसके बारे में जान लेंगे इंशाल्लाह। तो हुर्मत वाले महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अपनी नफ्स पर जुल्म ना करना, जिसका कि डिटेलिंग हमने अभी सुनी है कि कोई भी ऐसा काम जिसका हुक्म जो है दिया गया हो और उसको टालना और उसको छोड़ देना, ये हुआ अपनी नफ्सों पर जुल्म करना। और कोई भी ऐसा काम जिसको मना किया गया हो उस काम को करना, इसको कहते हैं अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म करना। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़, यानी कि मान लीजिए कोई भी फ़र्ज़ नमाज़, कोई भी ऐसी चीज़, माँ-बाप का जो फ़र्ज़ है, माँ-बाप से की बेइज़्ज़ती, या फिर जो है किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना इन महीनों में, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों में करने वाले ये 4 काम है। उसके अलावा क्या करना है, नेकी में इज़ाफ़ा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेकी वाले काम करे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करते रहे, और गुनाहों से बचना है। तो बेसिकली क्या नहीं करना, बस नफ्स पर ज़ुल्म नहीं करना, जंग व जिदाल से बचना है। मुशरिकीन मक्का में लोग जो थे जहालत के दौर में भी हुर्मत वाले महीनों की इतनी ज़्यादा वो किया करते थे, इज़्ज़त किया करते थे और एहतमाम किया करते थे कि कोई अगर बेटा अपने बाप के कातिल को भी देखता था तो छोड़ देता था, लड़ता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल हम लोगों ने क्या कर ली है, सारी चीज़ें उल्टी कर दी हैं। जिन महीनों में जिन चीज़ों के लिए मना किया गया है, उन्हीं चीज़ों को जो है हम कर रहे हैं। अब रजब के बारे में ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये महीना हुर्मत वाला महीना है। लेकिन इसकी हुर्मत के अलावा और कोई फ़ज़ीलत इस महीने की नहीं आती है। जैसे कि लोगों को देखा जाता है कि जैसे ही रजब का महीना आता है, तो लोग अलग-अलग तरीके के अमाल, अलग-अलग तरीके के जो है रिवायतें करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल है, कुछ लोग स्पेशल नमाज़ों और नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। कुछ लोग मख़सूस रोज़ों का एहतमाम करते हैं, जैसे कि पहली जुमेरात का रोज़ा या फिर पहले पहले जुमे का रोज़ा। इसी तरीके से रजब की जब 27 रात को आती है, तो रात में जागते हैं और नेक्स्ट डे रोज़ा रखते हैं। और भी कई तरह तरीके के रोज़े रखना, और 2 रोज़ों की इतनी फ़ज़ीलत, 7 रोज़ों की इतनी फ़ज़ीलत, वग़ैरह-वग़ैरह की बातें। उसके अलावा कई हदीसें जो हैं ऐसी मौज़ू, यानी कि जिनको है मनगढ़ंत पेश कर दी गई हैं कि उम्रे की फ़ज़ीलत बहुत होती है रजब में। और ईद मनाते हैं, जिसे कहते कहते हैं कुंडे की ईद कहा जाता है, जिसके अंदर मीठा वग़ैरह बनाते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात जो है सूरह तौबा में वाज़ह कर दी कि अपने नफ्स पर ज़ुल्म ना करें। और ये भी पता चल गया कि अपनी नफ्स पर ज़ुल्म करने का मतलब क्या है, कि जिस चीज़ से रोका गया उस चीज़ को जो है नहीं करना है। और जिस चीज़ के लिए का हुक्म दिया, सिर्फ़ उसी चीज़ के जो है करना है। और जिस चीज़ के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है, तो उसको तो सोचना भी नहीं चाहिए इंसान को। तो हम क्या कर रहे हैं, हुर्मत वाले महीनों में ही तरह-तरह की चीज़ें इजाद करके अपने नफ्सों पर जो है ज़ुल्म कर रहे हैं। तो माह रजब की अगर फ़ज़ीलत रखना चाहें, तो सिर्फ़ यही साबित है कि ये सिर्फ़ हुर्मत वाला महीना है। उसके अलावा हुर्मत वाले महीने में करने वाले ये 4 काम हैं। इसके अलावा इन जो चीज़ों के बारे में, जितनी भी बिदअतों के बारे में, उसमें से कुछ भी साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ुल्म से मुराद सबसे पहले क़त्ल गारत, मासियत, गुनाह या फिर बुराई रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी वज़ाहत आयत नंबर 17 में की है, सूरह बकरा की। 200 सूरह बकरा की आयत नंबर 218 में, कि हम जो है क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
اور क्या नहीं करना है। इसी तरीके से सही बुखारी की एक और रिवायत में आता है कि लोग तरह-तरह की चीज़ें इसके अंदर किया करते थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरा वला अतीरा। तो फरा एक ऐसी चीज़ होती थी जो कि ये लोग क्या किया करते थे कि जो ऊँट के बच्चा होता था, पहला बच्चा फर्स्ट बॉर्न जो होता था ऊँट का, उसको क्या करते थे बुतों के नाम पर ज़िबह कर दिया करते थे। और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम में फरा जैसी कोई चीज़ नहीं और ना ही अतीरा जैसी कोई चीज़ है। अतीरा क्या होता था? अतीरा कहते हैं कि अरब के लोग खास तौर पर बुतों के नाम पर कुर्बानियाँ करते थे। तो खास तौर पर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। अब ये सवाल ये है कि अब जब खास तौर पर कोई चीज़ है ही नहीं तो 4 महीनों को खास क्यों रखा गया? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे चुनता है। हफ्ते में दिन को चुना जो कि है जुमा, किताबों में कुरान को चुना, महीनों में हुर्मत वाले महीनों को चुना, रातों में शब कद्र को चुना और इंसानों में अंबियाओं को चुना। इसी तरीके से दिन में भी जो घड़ी है रात की 1 तिहाई वक़्त तहज्जुद के वक़्त को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद किया। तो इसका जवाब ये है कि ये तरीका है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कुछ कुछ चीज़ों को चुन लेता है। अब हमारा काम ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन चीज़ों को चुना है और उसकी अज़मत को बयान किया है, तो हमें उसकी अज़मतों का कभी भी जो है बाअमाल नहीं करना चाहिए, उसमें कोई भी बदअमली नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है, वही अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें क्या 4 चीज़ें करनी हैं? कत्ल-ओ-गालत से बचना है, जंगो-जिदाल से बचना है, गुनाह में कमी यानी कि नेकियों में इज़ाफ़ा करना है और अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म नहीं करना है। लेकिन हमने चीज़ों को ख़ास कर दिया है, हुँ? जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला फरा वला अतीरा कि कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं, लेकिन हमने फिर भी हर महीने में एक ना एक चीज़ या एक ना एक जो है कि ऐसा बना लिया है फेस्टिवल कि हर चीज़ को जो है ख़ास कर दिया है। ठीक है? उम्रे का एग्ज़ाम्पल, उम्रा कभी भी हो सकता है, लेकिन रजब के महीने में ख़ास कर लोग करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपने खुद कहा अभी कि मतलब कुछ लोग का क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने खुद कहा कि नेकियों में इज़ाफ़ा करना है, तो क्यों ना जो है उम्रा जो है रजब में ही कर लिया जाए। आंसर ये है कि कोई ख़ास दिन नहीं है। एक दिन को ख़ास मानकर जो है, उसी चीज़ को कोई भी चीज़ स्टार्ट कर देना कि रजब का महीना है और इसी टाइम में जो है, तो उसी से चीज़ें शुरू हो जाती है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी चीज़ से जो है चीज़ें शुरू हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस आएगी तो हम देखेंगे कि बिदअत को गुमराही कहा गया और हर गुमराही जो है क्या है? जहन्नम की आग है। तो अब एक नमाज के बाद कोई भी पर्टिकुलर ये नफ़िल पढ़ना है, एक रात को खुद को ख़ास मख़सूस कर दिया है, तो ख़ास महीना चुनना वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही चुन सकता है और हमें बता सकते हैं। और जो है हमारा काम है कि उसकी अताअत करना और उसकी जितनी भी फ़ज़ीलत बताई है और जितने भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से साबित हैं, वो करना। खुद से किसी भी चीज़ को अपनी अकल लगा के, अपना दिमाग लगाकर जो है उस चीज़ को क्या ना करना, किसी भी तरीके से ना ख़ास बनाना और ना ही जो है किसी चीज़ को ऐजाद करना। तो कहा गया कि अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ना करें, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आज हम तरह-तरह की बिदअतें ऐजाद करके अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ही करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही हमें इस चीज़ से आगाह कर दिया था कि देखो बिदअत ना करना। दीन के अंदर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देते जितनी भी बार तो यही बोलते थे कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब की है यानी कि कुरान की है। सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और दीन में नए कामों से बचते रहना इसलिए कि दीन में हर नया काम क्या है? बिदअत है। इसलिए हर बिदअत में गुमराही और हर गुमराही का ठिकाना जो है क्या है? वो जहन्नम की आग है। तो हर बार जभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, तो यही बात बोलते थे और कहा कि हर बात अल्लाह जो सबसे बेहतरीन बात जो है वो अल्लाह की किताब की है। तो यानी कि हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 से देख लिया कि जो बेहतरीन बात है वो अल्लाह की बात है यानी कि जो हुर्मत वाला महीना है वो रजब है, बेशक। फिर उसी तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस चीज़ पर क्या क्या हुआ, उस पर हमें एक हदीस भी मिल गई। उसके
अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें, वो कहीं से भी साबित नहीं है बहनों। जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की गई, उम्रा रखना, रोज़े रखना, 27 की मेराज मनाना, एक-एक के बारे में बताएँगे कि किस तरीके से जो है लोगों ने चीज़ें बना ली हैं। जितनी भी रिवायतें हैं उन्हें मौज़ू कहा जाता है। अब मौज़ू रिवायतें क्या होती हैं? मौज़ू जो रिवायतें होती हैं, उसको बोलते हैं गढ़ लेना, यानी कि कोई भी चीज़ अपने ही मन से बना लेना, जिसका कहीं से भी कुछ भी जो है सोर्स वो मालूम नहीं है और कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे ही हम देखते हैं कि हुर्मत वाले महीने आते हैं, चाहे रजब हो, चाहे मुहर्रम आए, चाहे कोई कोई सा भी जो है महीना आए, तो हमने इतनी चीजें इजाद कर ली हैं। चाहे वो मुहर्रम में जो है कोई भी जुलूस निकालना हो, चाहे अब जो है ये शबे मिराज मनाना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत करे, क्योंकि उसने अपने कलाम में फरमाया कि इन दिनों में अपनी नफ्सों पर जुल्म ना करो। और हम सब क्या करते हैं कि वही चीज़ जो है कर रहे हैं। अब इस महीने में जो अमाल किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अमाल कितने ज़्यादा हैं, कितनी मेहनत है उसमें, लोग हैं वरना क्या है कि एक तरफ़ा जो है रख दिए जाते हैं। बस असल चीज़ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल और सहाबा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या चीज़ें की हैं। अगर किया है तो आप भी करिए, अगर नहीं किया है तो आप भी करिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई चीज़ करनी है तो हमें डट कर करनी है, और अगर नहीं करना है तो हमें डट कर जो है उस चीज़ से क्या करना है, बचना है। सबसे पहला जो इसके अंदर होने वाला अमाल है जिसको बोलते हैं क्या, जो कि लोगों बिदअत है, जिसे कहते हैं सलातुल रगाइब। अब सलातुल रगाइब किस तरीके से जो है ये पेश की जाती है, ये मौजू है यानी कि गढ़ी हुई है, लेकिन किस तरीके से लोगों के सामने ये पेश की जाती है उसके उसके बारे में बात बताते हैं कि रजब आते ही लोग बड़े एहतमाम के साथ लोग इसका एहतमाम करते हैं। इसके ताल्लुक से जो रिवायत पेश की जाती है वो मौजू है। बहनों मौजू का मतलब पहले ही मैंने बता दिया है कि गढ़ी हुई है। अब देखिए जो गढ़ी हुई चीज़ है उसको भी इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि कोई भी इंसान जो है क्या होगा, इस चीज़ में वो हो जाएगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है क्या की गई, गढ़ी गई। तो हदीस क्या है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औज़ु बिल्लाह, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। जो शख्स रजब के पहली जुमेरात के दिन का रोज़ा रखेगा, जुमे की रात मगरिब से इशा के दरमियान 12 रकात नमाज पढ़े, और इसी तरह मैं हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह क़द्र, 12 बार सूरह अखलास पढ़े। जब नमाज से फारिग हो चुका हो तो मुझ पर 70 मरतबा दुरूद भेजे, और उसमें एक ख़ास दुरूद का तरीका जो है वो भी बताया गया, जिसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और फिर सजदे में चला जाए, और फिर सजदे में ये दुआ पढ़े, सजदे से उठने के बाद एक और दुआ पढ़े। अब दूसरे सजदे में बिल्कुल वैसे ही रिपीटिशन होता है जैसे कि पहले वाले में किया था। इसके बाद अल्लाह से जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। तो ये इसकी फजीलत बताई जाती है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है साबित नहीं है। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है इसको किताब अल-लताइफ में 173 और अल-मनार अल-मुनिफ में जो है इस चीज़ को मौजू कहा, और कहा कि ये कहीं से भी जो है साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के अलावा सलातुल रगाइब की रिवायतें जो है मनगढ़ंत हैं, और उसके मुखालफत करने वाले का कोई भरोसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वज़ाहत हदीस में की, जो जानते बूझते मुझ पर झूठ बांधे या गढ़े उसका ठिकाना जहन्नम जहन्नम की आग बना ले। इसी तरीके के रजब के मखसूस रोज़े रखना, ये सब बिदअतें हैं जो कि अ किसमें रजब में मनाई जाती हैं। तो मखसूस रोज़े रखना भी ये रिवायत में मौजू है, लेकिन ये किस तरीके से पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कोई ख़ास रोज़ा रखने के लिए नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के अंदर किसी ख़ास रोज़े रखने का हुक्म ही नहीं दिया। तो जब
ना तो अमल ही है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ना तो अमल और ना हुक्म। तो फिर हमें उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कि इन महीनों में अपनी जानों पर ज़ुल्म ना करें। तो जब जिस चीज़ के लिए कहा नहीं गया तो उस चीज़ को तो करना ही नहीं है, और जिस चीज़ के लिए की बात ही नहीं तो उस चीज़ के बारे में तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। अब इसी तरीके से इसके अंदर जो है रिवायत जो है वो क्या बताई जाती है, बेशक रजब का महीना अज़मत वाला महीना है। जो शख्स इसमें क्या करेगा, एक रोज़ा रखेगा तो तो अल्लाह उसे 1000 साल के रोज़े का सवाब देते हैं, और जो 2 रोज़े रखेगा उसे 2000 रोज़े के सवाब देते हैं। जो 3 रोज़े रखेगा उसे 3000 साल के रोज़े का सवाब मिलता है। और जो 7 उसके उसके क्या होते हैं, जहन्नुम के सातों दरवाजे जो हैं उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं, और जन्नत के 7 दरवाजे, और जो 8 रखता है उसके लिए जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो 15 रखता है उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखता है उसकी जो है सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, और वो ऐसा हो जाता है जैसे कि अपनी माँ के पेट से जना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मुनादी देने वाला आवाज लगाता है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए, अब तुम नए सिरे से जो है क्या करें। तो इमाम अल जौजी ने अपनी अल फवाइद में, और जो कि है नंबर है इसका 116 में, इस चीज को मौजू करार दिया है। इसका कहीं से भी कोई भी जो है ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है बहनों। अब किसी भी चीज को पता कैसे चलेगा, किसी भी चीज का पता कैसे चलेगा कि ये मौजू है? हम बोल तो रहे कि ये मौजू है या क्या है? इसके लिए इमाम नववी ने कहा कि मनगढ़ंत हदीस को पहचानने का तरीका क्या है? कि अब जैसे उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बात होती है कि आप एक चीज़ कर लीजिए, एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि शब कद्र, जो कि कुरान की जो सूरत है लैलतुल कद्र से वो साबित है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और इसी तरीके से उसमें जागने का मतलब क्या है कि शब कद्र का क्या है कि एक रात जागने में 1000 महीने यानी कि 83.3 महीने का सवाब मिलता है। लेकिन अगर वहीं जो है कोई आपको ये कह दे कि एक रात जागने में जब 83 महीने का सवाब मिल रहा है किससे? शब कद्र से। फॉर एग्ज़ाम्पल महीनों का सवाब मिल रहा है। लेकिन वहीं जो है कोई ये कह दे कि शब कदर में ना जाग कर आप एक दूसरी रात में जागिए, और जिसका सवाब जो है शब कदर की रात से भी ज्यादा का सवाब है, तो समझ जाइए कि वो मौजू है और उसका कोई बेसिस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर रजब के रोजों की बात हो रही है कि एक रोजा रखेंगे तो 1000 रोजों का सवाब, 2 रोजा रखेंगे तो 2000 रोजों का सवाब। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रमज़ान के एक रोज़ा रखने का कितना सवाब है, 70 गुना सवाब है रमज़ान का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान में एक रोज़े रखने का कितना सवाब है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 गुना, और यहाँ पर एक रोज़ा रखने का 1000 गुना सवाब है। तो तादाद जो होती है हमेशा बढ़ा दी जाती है, ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें करने लगे, जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी तरीके से मना किया कि इन महीनों में अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ना करो, इन महीनों में अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ना करो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी किसी हदीस में, किसी रिवायत में, किसी अमल के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हो, तो जान लो कि वो मनगढ़ंत है या फिर मौज़ू है। शब कद्र की फ़ज़ीलत हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है। अब अगर कोई कहे कि शब कद्र के अलावा भी एक ऐसी रात आती है जो हज़ार महीनों से अफ़ज़ल है, तो वो मौज़ू है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही जो है क्या होता है, किसी भी मौजू रिवायत को पहचानने का तरीका होता है, जो कि इमाम अल जौज़ी के मुकाबले में है। इसी तरीके से रोज़े के साथ मखसूस नमाज़ों का पढ़ना, ये भी मौजू रिवायत है, जो कि जिसको किस तरीके से कहा जाता है। जो आदमी रजब में 1 दिन का रोज़ा रखे, इसमें 4 रकात इस तरह से पढ़े कि पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, 2 रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तो उसकी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जन्नत में ना उसका ठिकाना बड़ा बड़ा बता दिया जाएगा। रोज़ा 4 के रोज़
4 रकात के ये नमाज़ जो है क्या है, अगर ये नमाज़ पढ़ेगा तो वो मरेगा नहीं, और मरेगा तो क्या होगा, जन्नत में ठिकाना होगा। तो ऐसा भी कहीं होता है बहनों? आप खुद सोचिए कि वो मरेगा नहीं और सीधा जन्नत में पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ फिर उन सवालों का, उन जवाबों का जो कब्र में होता है? इस महीने में कोई ख़ास नमाज़ साबित ही नहीं है, कोई रोज़ा साबित ही नहीं है। रजब में 3 दिन के रोज़े पूरे महीने का सवाब, 15 दिन के रोज़े अल्लाह अपनी जो क्या है रज़ामंदी लिख कर और ऐसा भी बोलते हैं लोग कि 15 दिन के रोज़े अल्लाह अपनी रज़ामंदी लिख कर देगा पूरे महीने में, और हिसाब नहीं होगा। नाउज़ुबिल्लाह। तो झूठ बाँधना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मुझ पर झूठ बाँधा, अल्लाह जो है हमें इन सब चीज़ों से बचाए। इसी तरीके से 27 की रात लोग जो है बहुत ज़्यादा वो करते हैं, शब-ए मेराज इसके अंदर जो है मनाया जाता है। शब-ए मेराज में क्या है कि मस्जिदें जो हैं वो सजाई जाती हैं, तैयारियाँ की जाती हैं, और जो होता है इसके अंदर बहुत से मुसलमान जो है रजब की 27 को जो है गुज़ारने के बाद, ये है कि अब रमज़ान नज़दीक है, तो 15 को एक और रात आती है, तो क्या करते हैं, बारात मनाने लगते हैं। हुँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान ने खुद ही इजाद करी, और जो चलती चली आ रही है, तो हमारी भी गलती ये हो जाती है बहनों कि हम उस चीज़ को जो है, हम उस चीज़ की छानबीन नहीं करते हैं। हमने कभी छानबीन ही नहीं की उस चीज़ की। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी बोल सकते थे कि सुनो या देखो, लेकिन जो पहली सूरह आई वो क्या था, इक़रा। इक़रा का मतलब है पढ़ना। पढ़ अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिसने बनाया इंसान को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पहला लफ्ज़ उतारा वो क्या था, इक़रा, यानी कि पढ़ना, नॉलेज, दीन, हर चीज़ को पढ़ना है। वरना तो क्या होता, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना बोल देते, तो हर इंसान वही कर रहा होता जो दूसरा मुसलमान देख कर रहा है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनना बोल देते, तो हर इंसान वही कर रहा होता जो सुनना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या वर्ड यूज़ किया, कहा इक़रा, यानी कि पढ़ो। अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में खोजो, उस चीज़ के बारे में जो है जाओ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स नाउअडेज़ इनसाइड द ऑन इंटरनेट। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो कि रेफ़रेंस के साथ सही तरीके से सही चीज़ें बताते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जब जो बताएँगे उनका कोई रेफ़रेंस कहीं से भी जो है वो साबित नहीं होगा। यहाँ किसी को जो है डिसरिस्पेक्ट के तरीके से कोट करना नहीं है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को जो है, अपनी नफ्सों को ज़ुल्म से किस तरीके से बचाएँ, उस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। अब 27 की रात को शब-ए मेराज जो है मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब रमज़ान आता है तो उसमें असली रातें जो हैं वो भूल जाते हैं। 15 को शब-ए बारात मना ली, और जो है 27 को शब-ए मेराज मना ली, और जब रमज़ान आया, जब शब-ए कदर की बात आई, जिसका जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ज़िक्र किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है, यानी कि कुरान की बात है, ठीक है? और उस चीज़ को भूल गए। उस चीज़ में जो है जागना ही नहीं है, क्योंकि जब डुप्लीकेट बढ़ जाता है ना बहनों, तो ओरिजिनल की जो है क्वालिटी, ओरिजिनल की अहमियत इंसान की नज़रों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एक चीज़ ऐसी है कि उसमें आप कहीं पर जो है कुछ नहीं कर, एक जगह पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है, क्योंकि जब है ही नहीं तो इसमें किसी तरीके से रोक-टोक ही नहीं है। हुँ, तो क्या होता है कि ओरिजिनल को खो देते हैं डुप्लीकेट के चक्कर में। अब क्या बताते हैं कि इस महीने में एक ऐसी ये इस महीने में एक ऐसी रात हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, मस्जिद अक़सा गए और फिर आसमान से सफ़र किया, आसमानी सफ़र किया। ये रात तो हुई बेशक, शब-ए मेराज जो है वो हुई, जो कि साबित है कई हदीसों से। लेकिन ये 27 रजब की रात थी, ये कहीं से भी साबित नहीं है, ये वाक़या कहीं से भी साबित नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तक का सफ़र किया, उसे बोलते हैं अल-इस्रा।
जिसकी वज़ाहत सूरह अल इसरा में आयत नंबर 1 में आती है। पाकी है उससे जो रातों-रात अपने बंदे, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जो रातों-रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदा-गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अज़ीम निशानियाँ दिखाएँ, बेशक वो सुनता देखता है। तो ये जो अल इसरा द नाइट जर्नी जभी भी हुई, तो ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कुरान की आयत में क्या लिखा गया कि मस्जिदुल हराम से मक्का से जेरूसलम तक की ही बात हुई। शब मेराज हुई, लेकिन 27वीं रजब को हुई, उसका कहीं से भी कोई भी जो है ज़िक्र नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बेशक जो है मिराज का वाक़या सच है, लेकिन किसी चीज़ का होना उसके मनाने की दही दलील नहीं है बहनों, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब जो है फ़तह हुई थी मक्का में, जब फ़तह हुई थी मक्का में तो सेलिब्रेशन नहीं किया। इसी तरीके से जंग बदर जो है, जंग बदर में क्या हुई थी? फ़तह हुई थी। तो उस दिन का जो देखिए किसी चीज़ के होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मनाया जाए, ठीक है? अब शब-ए मेराज हुई, ठीक है? ये नहीं पता कि किस दिन हुई, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो है नई चीज़, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ना उसके अंदर, कि अतीरा भी मना है, और क्या चीज़, कोई भी ख़ास चीज़ जो है और कोई भी मनगढ़ंत चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो कोई चीज़ अगर गुज़र गई, मान लीजिए हिस्ट्री में या तारीखों में कोई चीज़ गुज़री है, अब जैसे जंग बदर थी तो उस दिन भी उम्मत जीती थी, उस दिन भी जो है उम्मत को क्या हुई थी, फतेह हासिल हुई थी। हम्म तो तो क्या है, तो क्या करते हैं, उस दिन मनाएंगे नहीं, उस दिन क्या करेंगे, बाहर जाकर दूसरों से लड़ते हैं। पता है किसी को कब हुई थी जंगे बदर, या फिर किस टाइम पर हुई थी, या किस दिन हुई थी, या किस तरीके से हुई थी? हाँ, तो उस दिन अगर मान लीजिए अगर शबे मिराज ही मनानी है, तो फिर जंगे बदर में तो इस्लाम जो था वो जीता था। जंगे बदर में क्या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कम लोगों को क्या किया था, इतने लोगों पर फतेह दी थी। तो क्या हम उस दिन को मनाते हैं? नहीं। इसी तरीके से सुलह उदैबिया हुई थी, फलाह मुबीन हुई थी जिसको कहा जाता है, तो उस दिन को मनाएँ फिर हम लोग? नहीं। तो किसी चीज़ का होना इस्लाम में उसके मनाने की दलील नहीं होती है। कुछ चीज़ें हुई और उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को जो है मनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेराज पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बेशक गए, पर ये रात 27 रजब की थी, इस बात की कोई दलील नहीं है। अब इसमें इतने उल्लामा के कमेंट्स हैं जिन किसी ने जो है कुछ नहीं कहा कि शाबान में, रजब में, रमज़ान में और मुहर्रम में। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये रात जो है कब थी। कुछ कहते हैं कि ये रात जो है कब थी, शाबान में, कुछ ये थी कि रजब में, कुछ कहते हैं रमज़ान में, कुछ कहते हैं मुहर्रम में। और अल्लाह बेहतर जानता है, जिस चीज़ में इख्तलाफात हैं उस चीज़ को क्या करें, जिसमें जो है, जो अल्लाह ने जो आपके नबी ने दे दिया उसे ले लें, और जो आपके जिस चीज़ से आपके नबी ने मना किया उस चीज़ को क्या करें, छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रात कब हुई, वल्लाहु आलम। अब ये है कि शायद हिंदुस्तानी, और ये थोड़ा-सा काज़िम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, पाकिस्तानी लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करे, क्योंकि ज़्यादातर इसी माशरे में जो है ये चीज़ है। और जो है ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अलग से आकर बता गए थे कि ये 27वीं रजब थी। हुँ? औज़ुबिल्लाह। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ भी हुई, बेशक हुई, लेकिन जो है इसमें कई आलिमों का जो है इख्तिलाफ़ात है कि वो 27 मिराज थी, या रमज़ान थी, या मुहर्रम थी, या रजब थी। लेकिन जो है 27 रजब थी, इस चीज़ के बारे में कोई भी जो है दलील पेश नहीं होती है। तो इट्स बेटर कि इस चीज़ से क्या करें, बचा जाए, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों में क्या करना है, अपनी नफ्सों को ज़ुल्म से बचाना है। अब क्या-क्या होता है इसके अंदर, रातों को मस्जिदें सजाते हैं, ठीक है, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मीठे पकवान बनाते हैं, पूरी रात जागते हैं, अलग-अलग किस्म की नमाज़ें पढ़ते हैं, और फिर अगले दिन रोज़ा रखते हैं। ये सब क्या है? ये बिदअतें हैं। बेशक वो रात हुई, वो वाक़या हुआ, लेकिन कब हुआ इस बात की दलील कोई नहीं जानता बहनों। किस महीने, किस किस समय और किस दिन हुई, हमें नहीं पता। तो लिहाज़ा याद कर सकते हैं, लेकिन मनाना नहीं है। मना नहीं सकते इस चीज़ को, किस महीने में हुई, वो उसकी भी कोई रिवायत नहीं है। तो कोई आदमी
जो है हमेशा जागता है, तो वो अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई आदमी है वो हमेशा जागता है, या फिर जो है वो क्या करता है कि उसको रोज़ा रखना है, हुँ? जैसे जुमेरात का रोज़ा रखते हैं और पीर का रोज़ा रखते हैं, यानी कि मंडे और थर्सडे फ़ास्ट करते हैं जो लोग, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ख़ास करके कि एक रोज़ा रखेंगे तो ये सवाब मिलेगा, तो 2 रोज़े रखेंगे तो 2000, ये सब नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़ास तरीके से और नंबरिंग जहाँ पर आ जाती है, जो कि बता दिया इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि बता दिया कि ये किसी भी मौज़ू रिवायत को पहचानने का क्या तरीका है कि उसकी जो है किसकी फ़वाइद की, फ़ायदों की जो है तादाद जो है वो क्या होगी, बड़ी-बड़ी होगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत-बहुत जो है बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज हम सबको यहाँ पर इसीलिए लेकर आए, ताकि जो है हम जानें और हमारा जो है इस चीज़ के बारे में जो है दिमाग खुले और जो है दिल खुले। इसी तरीके से 27 रजब हो गया, अब उम्रा की इस उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं, फ़ज़ीलत बताई जाती है। तो वो भी जो है क्या है, कहीं से भी साबित नहीं है। सही मुस्लिम में उम्रा के ताल्लुक से जो है एक जो है रिवायत आती है, जिसको भी पढ़ेंगे, कि उर्वा बिन ज़ुबैर के एक दिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मैं दोनों मिलकर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के बाहर बैठे थे। और मैंने सवाल किया कि इब्ने उमर से, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में भी कोई उम्रा किया था? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ किया था। फिर मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब्दुल्ला इब्ने उमर की मग़फ़िरत फरमाए, यानी कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने जो है गलती से बोल दिया है। कहा कि मतलब गलती हुई है उनसे और अल्लाह उनको माफ़ करे। अल्लाह की कसम, फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई उम्रा रजब में नहीं किया। सुभान अल्लाह। इस हदीस को भी पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब-कब उम्रा किया। कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा किया। वो सब ज़ुल्क़अदा में थे, सिवाय ज़ुल्क़अदा में वो उम्रा जो उन्होंने अपने हज के साथ अदा किया, उन्होंने अल उदैबिया से या ज़ुल्क़अदा में हुदैबिया के वक़्त पर उम्रा किया। उन्होंने अगले साल ज़ुल्क़अदा में उम्रा किया और उन्होंने जरअना से उम्रा किया, जब उन्होंने ज़ुल्क़अदा में हुनैन के माल गनीमत में हिस्सा लिया। ये क्या है, सही बुखारी की और सही मुस्लिम की रिवायत है। तो कब किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 मरतबा उम्रा किया। अब वो सब किसमें थे? ज़ुल्क़अदा में थे। तो अब हमें क्या पता चल गया कि ज़ुल्क़अदा में उम्रा करना सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है किया और रजब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी जो है उम्रा नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो अब जितनी भी रिवायतें हैं, तो इस चीज़ का रेफ़रेंस भी है बहनों। इस चीज़ का ये भी है, आप जाकर इसको सही मुस्लिम में ढूँढेंगी, तो ये रिवायत वहाँ पर मौजूद होगी। ये रिवायत वहाँ मिलेगी, इसी नंबर के साथ मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को बोला है, जिन लोगों ने कहा है कि उम्रा जो है रजब के महीने में करने में बहुत फ़ज़ीलत है और इतना सवाब मिलता है। हुँ? इसी तरीके से कई लोग बोल दें कि हज के बराबर सवाब मिलता है अगर उम्रा करें। तो कोई भी कुछ भी बोल दे, तो उससे क्या करें, दलील माँगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्या करना है, दलील के साथ-साथ इक़रा, यानी कि पढ़ना भी है, खुद भी उस चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि किसी से सुन लिया और जो है उस चीज़ को मान लिया, वो सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से 22 रजब के कुंडे मनाना। अब देखिए 22 रजब के कुंडे। तो क्या है, बेसिकली इसको क्या बनता है, खीर और पूरी बनाई जाती है। अगर किसी ने देखा हो तो उनको पता होगा कि खीर, पूरी और पता नहीं मीठी-मीठी पूरियाँ होती हैं, वो सब कुछ बनाई जाती हैं इसके अंदर। हाँ, तो सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दिन में 3 मर्तबा खाना भी साबित है? मतलब अगर जो है बात करेंगे कि ये जो है ईद है और ऐसा है और वो है।
तो साबित तो 3 मर्तबा खाना भी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं खाते थे, हैं? तो वो लोग जो दिन में 3 बार खाना खाते थे, तो क्या उन्हें जो है कोई ऐसी ईद साबित हो सकती है, जिसमें लोग खीर बनाएँ, पूरियाँ बनाएँ और लोगों को दावत दें और खुद भी खाएँ और फिर जो है क्या करें, अगले दिन उस चीज़ का जो है जश्न मनाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 मर्तबा दिन भर में भरपेट खाना नहीं खाया, तो वो एक ऐसी ईद मनाएँगे जिसमें खीर और पूरी और कुंडे और ये सब कुछ होगा। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ रजब के कुंडे मनाने के लिए वो सारी चीज़ें रखी जाती थी? ये भी जो बिदअत है बहनों, ये भी एक बिदअत है और ये भी मौज़ू है, जितनी भी चीज़ें आती हैं। अगर इस चीज़ का इस्लाम में ज़रा भी ताल्लुक है, तो अरबी में क्या नाम है इस ईद का? ठीक है। देखो, ईद को ईद उल फित्र को बोलते हैं ईद उल फित्र, ईद उल जुहा। तो अरबी में ईद उल कुंडा नहीं होगा बेशक, है ना? तो ये और कहाँ मिलता है? सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया में और पाकिस्तान में, ये इन दो जगह में मिलता है। तो देखिए, कोई भी हदीस अगर है तो वो अरबी में ही आई है, फिर उसका हम क्या करते हैं, इंग्लिश में है तो उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, या फिर जो है उर्दू में उस चीज को जो है क्या करते हैं कि ट्रांसलेट कर लेते हैं, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो अगर ये ईद साबित है किस चीज से, हदीस से, तो हदीस जो है, हर हदीस क्या है, अरबी में होती है, अरेबिक जबान में है, अरेबिक लैंग्वेज में है। तो अरेबिक लैंग्वेज में इस ईद को क्या कहा गया? सिर्फ कुंडे, कुंडे जो है क्योंकि एक हिंदी वर्ड है, या उसको कह सकते हैं कि एक उर्दू का लफ्ज है। हाँ, तो जिन लोगों ने इजाद किया उन्होंने उसको कुंडे की ईद कह दिया बहन। तो ये खुद से पूछे, ये खुद से सोचें सारी चीजें कि किस तरीके से जो है लोग चीजें करते हैं, ताकि जो है ईमान कमजोर हो और खुद भी जो है नई तरीके की चीजें करते हैं, अपनी नफ्सों पे जुल्म करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका सुनकर हम भी क्या करते हैं, अपनी नफ्सों पर जुल्म करते हैं। और इस चीज़ का अरेबिक नेम तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इन्वेंट की गई है ना? इंडिया के अंदर ही इन्वेंट हुई है ये, ठीक है? इसका रेफरेंस जो है कहीं भी नहीं मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से ईद से रिलेटेड जो है एक हदीस है। जी, ये सुनन अबी दाऊद की 1134। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 2 दिनों में तशरीफ लाए, जिनमें वो जश्न मना रहे थे। मदीना के लोग जश्न मना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 दिन कौन से हैं? कहने लगे, ये 2 दिन हम ज़माना जहालत में मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों को तो बेहतर दिनों से बदल दिया है, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर। यानी कि तुम लोगों के पास इनसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं, जो कि क्या है, ईद उल ज़ुहा और ईद उल फित्र। इन 2 चीज़ों के अलावा, इन 2 जश्न के अलावा और इन 2 दिनों के अलावा कोई भी ईद ऐसी नहीं है, जो कि किस चीज़ से साबित हो बहनों। तो हर चीज़ को जान ले, पढ़ ले और परख ले। जो भी कोई कहे कि अगर कुंडे वाली ही ईद है, तो आप बता दीजिए कि किस जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है। जो इसका रेफ़रेंस मिलता है, वो बेसिकली किस चीज़ से मिलता है, कि एक आदमी था जिसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है दास्तान अजीब। उस किताब का नाम ही दास्तान अजीब है, ठीक है? उस किताब में उसने एक वाकया लिखा, एक स्टोरी लिखी, एक लकड़हारे के बारे में, कि जो कि बहुत ही परेशान था। फिर उसने जाफ़र सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम रह चुके हैं, ठीक है? उनकी जो है क्या की, नज़र की उनकी। और फिर जो है उन्होंने क्या किया, अल्लाह से नज़र माँगी, और अल्लाह ने 22 रजब को उनके नाम से क्या किया, फिर कहा कि 22 रजब को जिसने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरे नाम की नज़र के करेगा, तो उन उसको हर चीज़ पूरा करेगा, जो कि अपनी क्या है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो माँगेगा। सबसे पहली बात, जो ये बुक थी, जो दास्तान अजीब है, जिसके बारे में लिखा गया, और ये इंसान जो था वो यूपी का ही रहने वाला था, ठीक है? तो दास्तान अजीब में जो ये है, सबसे पहली बात तो ये फ़िक्शनल है। फ़िक्शनल यानी कि न क्या, सॉरी, कि कोई भी जो है बनी हुई चीज़ जिसको बोलते हैं, कि ये जो है कैसी है, कि स्टोरी में जैसे किसी एक कैरेक्टर को डालते हैं कि एक लड़का होगा और उसके पापा होंगे और 2 बच्चे होते हैं। इसी तरीके से क्या है ये, हाँ, मनगढ़ंत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
और लोगों से कहा कि मेरे नाम से क्या है, ये दिन जो है मनाया करो। तो उसमें जाफर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोग तरह तरह के बड़े बड़े रेफरेंस देते हैं, जबकि वो रेफरेंस किसका है, एक किताब का है जो कि है दास्तान अजीब, जो लिखी किसने, किसी एक नॉर्मल इंसान ने जो कि यूपी का रहने वाला था। अगर ऐसा हुआ, ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी हाजात पूरी नहीं होगी और रोज़े क़यामत मुझे पकड़ लेना आकर। उसके अंदर पूरी-पूरी जो रिवायत ये लिखी है, अगर ऐसा ना हुआ कि तुमने मेरी नज़र ना की और जो है तुम्हारी हाजात पूरी नहीं हुई तो रोज़े क़यामत मुझे आकर पकड़ लेना। तो ऐसा तो कोई इंसान बोलेगा नहीं, जो भी कोई मोमिन है तो हर किसी को अपनी-अपनी पड़ी होगी और नफ़सी-नफ़सी जो है वहाँ पर चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर है ये चीज़, अगर वाक़ई में ये चीज़ है, तो हर चीज़ जो है अरेबिक में होनी चाहिए, और अगर नहीं है, तो उसको किसी इंसान ने लिखा है जिसका नाम ही है दास्तान-ए-अजीब। और जिसमें जाफ़िर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के कॉन्टेक्स्ट से ये चीज़ जो है लिखी हुई है कि जो भी कोई मुंडे मनाएगा, जो भी कोई ये वाली ईद मनाएगा, उसकी जो है हर हाजात पूरी होगी, और अगर नहीं हुई तो क़यामत के दिन आकर पकड़ लेना। क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पकड़ेगा, हर नफ्स सिर्फ़ सिर्फ़ अपने दिन अपने ही लिए क्या कर रही होगी, खैर मना रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से 22 रजब में अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री से पता चलता है कि अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था। जिन लोगों के दिलों में इनके खिलाफ नफरत थी, अब उनको खुशी मनाई है, उन लोगों को क्या था, उन लोगों को खुशी मनानी थी। और जाहिर सी बात है कि अगर खलीफा की मौत पर जो है मिठाई चलने लगे, तो पता चल जाएगा कि हुकूमत में क्या है, कोई ना कोई गड़बड़ी हो रखी है। ये इस्लामिक हिस्ट्री से जो है इसका रेफरेंस लिया बहनों मैंने। ठीक। तो लोगों ने जो है क्या किया, खामोशी से मिठाई बनाई, खामोशी से जो है सब जो है रफ़ा-दफ़ा किया, और जो मिट्टी के बर्तन में जो बनता है, उसको दबा देते हैं सुबह। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ़ सुनी है ये चीज़ कि क्या-क्या रिवायतें लोग करते हैं। तो अगर कोई भी बहन करती होगी तो उनको शायद पता होगा कि मिट्टी के बर्तन में कुंडे बनते हैं और फिर उनको दबा दिया जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, तो जो लोग उनके खिलाफ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई, और जो है अब किसी को पता ना चल जाए इसलिए चुपके-चुपके सारी चीज़ें की, और जो है मिट्टी के बर्तन भी जो है वहीं दबा दिए ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि अगर कोई खुशी मनाएगा तो पता तो चल ही जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है सिर्फ़ इतना साबित है कि जो कि इस्लामिक हिस्ट्री से हमें मिलता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल जो है वो किसमें हुआ था? उसमें रजब में हुआ था। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बस इतना अगर मिल गया, और जहाँ पर जाफ़र सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की नियाज़ के बारे में हुआ, तो फिर जो है जब जहाँ जाफ़र सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह नाम पढ़ लिया कि अरे ये तो इमाम है, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो बस उनके बारे में सारी चीज़ें जो है करना जो है शुरू कर देते हैं। इस महीने की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फ़ज़ीलत है कि ये जो है क्या है, हुर्मत वाला महीना है। अब इस तरीके से ये हदीस पढ़ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की है हदीस नंबर 107। मैंने कभी आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी। मैंने आपको ये भी फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। क्या जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना क्या करे, जहन्नुम बना ले। इसी तरीके से जब दीन मुकम्मल हुआ, सूरह मायदा की ये आयत है कि बिदअत का मतलब किस तरीके से हुआ। तो इसको स्टार्टिंग से पढ़ देते हैं। तुम पर हराम है मुर्दा और खून और सूअर का गोश्त, और जिसकी ज़िब्ह में गैर खुदा का नाम पुकारा गया, और जो गला घोंटने से मरे, और बेधारी की चीज से मारा हुआ, और कर्म जो गर कर गिर कर मरा हो, और जिस किसी जानवर ने सींग मारा, और जिससे कोई दर्द दरिंदा खा गया, मगर जिन्हें तुम ज़िबह कर लो, और जो किसी थान पर ज़िबह किया गया और पासे डालकर बांटा गया, ये गुनाह का
काम है। आज तुम्हारे दीन की तरफ से काफिरों की आस टूट गई है, तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लास्ट खुतबा दे रहे थे और जब इस्लाम पूरा हो गया था, तब की ये बात है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो जो भूख प्यास की शिद्दत में ना चा, चारों के ना चारों के गुनाह की तरफ ना झुके, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये उस टाइम की जो है सूरह मायदा की आयत नंबर 2 है ये, कि आयत नंबर 3 है, बेसिकली 2 टाइपिंग एरर हो गया है बहनों। तो सूरह मायदा की आयत नंबर 3 है, जिसमें जो है जब इस्लाम पूरा हुआ और क्या कहा गया कि ये जो है इसी तरीके से कहा गया कि हर जो है क्या है, गुमराह हर दीन में कोई भी नया काम, देखिए दीन पूरा हो गया, हो चुका। अब उसमें से आप कुछ निकाल नहीं सकते। अब उसमें जो है कोई चीज़ डाल नहीं सकते। तो जो चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, सिर्फ़ वहीं तक है दीन। और जब ये सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में आ गया कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, ठीक है? और जो ये दीन लेकर जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे? उसको कबूल फरमाएगा, ठीक है? इसकी वज़ाहत जो है एक हदीस से भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कहते हैं कि जो ये दीन मेरे पास लेकर आएगा, उसकी जो है उसको मैं कबूल करूँगा। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ह कौन है वो इंसान जो अगर इससे कोई चीज़ निकालेगा तो क्या वो बिदअत नहीं? और इस चीज़ में कोई चीज़ डालेगा तो वो इन्वेंशन ही एक तरीके से। जिस तरीके से अल्लाह ने कहा कि 12 महीने हैं, तो अब अगर आप 13 करेंगे, तो क्या है वो बिदअत है। और अगर आप 11 करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? और अल्लाह के नज़दीक है 12 महीनों की गिनती। तो अल्लाह के नज़दीक का मतलब ये है कि कोई भी महीना जो है कैसा नहीं होता, कोई भी महीना ना तो वो होता है मनहूस, ना ही बदशगुनी, ना ही मातम वाला, ना ही किसी चीज़ का होना बेशक इस्लामिक हिस्ट्री में उसको मनाने की दलील नहीं है। कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़ गुज़र गई, हाँ, जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चीज़ को फ़र्ज़ ना कर दिया हो। जैसे कि हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाजिरा अलैहिस्सलाम, तो उनका जो है सफ़ा और मरवा के बीच जो सही है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ कर दिया। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है क्या बोलते हैं इसको, काबे काबे पर जाना और वहाँ पर जो है हज करना, उस चीज़ को फ़र्ज़ कर दिया। तो जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना किया हो, तो किसी चीज़ का होना और उस चीज़ के पीठ पीछे चलना, उसको मनाने की दलील नहीं है। तो अब हुर्मत वाले महीने में हम करें क्या बहनों? तो हमें ढेर सारा ज़िक्र करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का चलते-फिरते, क्योंकि इसके अंदर नेकियों में इज़ाफ़ा करना है। तो हम क्या करेंगे? ज़िक्र करेंगे। अब देखिए ज़िक्र कैसे है कि हमें ज़्यादातर ये लगता है कि हम ज़िक्र क्या करते हैं? बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं। अगर आप किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस की बात हो रही है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हो रही है, और आप कहें कि कल मैंने ये लेक्चर सुना था और उसके अंदर मैंने ये सुना था, वो भी ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बेहतर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके अच्छे-अच्छे नामों से जो है पुकारा जाए। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है सदका करना है इसके अंदर, जितना करते थे उससे ज़्यादा, क्योंकि हमें नेकियों में इज़ाफ़ा करना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है? शुक्र करना है हर चीज़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और जो है बुरी आदतें, यानी कि जो इस्लाम में कहा गया कि ये बुरी चीज़ें हैं, उनको क्या करना है? अवॉइड करना है और छोड़ देना है। और किसी को जो है क्या करना है? नुकसान नहीं पहुँचाना और अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि यह हुर्मत वाले महीनों में जंग-ओ-जिदाल, क़त्ल-ओ-गारत और जो है इसी तरीके से मार-काट से मना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो रजब के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ साबित है कि 12 महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 पै दर पे आते हैं, जिसमें कि है ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और जो है मुहर्रम, और जो है चौथा जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया, रजब। हुर्मत वाले महीनों में करने वाले काम क्या है? लिहाज़ा इन महीनों में अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ना करो। अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू
ताला ने करने के लिए कहा हो उसको जो है ना किया जाए, उसको अवॉइड कर दिया जाए, ये होगा। या फिर किसी चीज़ को जो है क्या किया जाए, करने के लिए मना किया हो और वो चीज़ की जाए तो ये होगा। तो लिहाज़ा इन महीनों में अपनी नफ्सों पर ज़ुल्म ना करो, और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला परहेज़गारों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जितनी भी बिद्दतें आज दुनिया में फैल गई हैं, उन सब से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाएँ। जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी चीज़ों से बचाए जो कि गुमराही की तरफ लेकर जाएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर दीन में हर नई बात गुमराही है, बिदअत जो है गुमराही, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन सब चीज़ों से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी बहनों को इन सब बिदअतों से महफूज़ रखे। और अगर हम में से किसी से भी इन चीज़ों में से कोई भी गलती हो गई है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तव्वाबुर रहीम है, वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की तौबाएँ कबूल करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमें ऐसी चीज़ों से जो कि दीन में इजाद की गई हैं, उन सब चीज़ों से बचाए, और उन सब चीज़ों से बचाए जिससे हमारा नुकसान है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी भी ऐसी चीज़ों के पास हम बहनों को ना लेकर जाएँ जो दरवाज़ा हमारा ना हो और हम उसे खटखटाएँ। या रब्बल आलमीन, आप मेरी सभी बहनों को शिफ़ा-याब कर दीजिएगा। या अल्लाह, जिसके दिल में जो तमन्ना है हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमा लीजिएगा। और या अल्लाह, ये जो हुर्मत वाला महीना है, इसमें जैसा जो करने का हमें हुक्म दिया गया है उसको पूरा उसी तरीके से करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।